Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we are learn about the 5 stages of child development. So now we start. First one is cognitive development. Cognitive abilities are the power to solve a problem. This development can vary according to ages. A child is always learning to solve new problems. First of all, when the child is moving around and touching objects, it is gathering information about the surroundings. Similarly, an older child who is 5 years old is learning to solve mathematics problems. Both are different stages of child cognitive development. Now, our second point is social and emotional development. One of the important things to learn is how to interact with others. Interaction with people can vary depending on who is around them. ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात सबसे अहम है कि हमें किससे और कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह लोगों से बातचीत करना है और किस तरह उनका मुकाबला करना है. For example, how a child is playing with other kids in a room or how he react with an adult. एक बच्चा है जो कि दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है एक रूम के अंदर, और वही एक बच्चा एक बड़े इंसान के साथ में कैसे बिहेव करता है और किस तरह से वो उसका रिएक्शन होता है. As they grow, they learn to smile, helps others when they need or learn self-control. All these are part of emotional development. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मुस्कुराता है और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो किस तरह से अपने काबू में करता है, वो किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, किस तरह से उसके अंदर जज्बात ग्रो होते हैं, ये तमाम सोशल डेवलपमेंट की मिसाल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बेबी हु इज़ अ फ्यू मंथ्स वुड लर्न टू स्माइल एट अदर्स. Similarly, an older child learning how to wave at people. Our third point is speech and language development. When a baby is born, he does not understand any language. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किसी ज़बान को नहीं जानता, ना ही समझता है. However, our time as he sees how many responded with words, his understanding of language also grows. जैसे जैसे वो बड़ा होता है ऐसे ऐसे वो ज़बानों को सुनता है अपने अतराफ़ की और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है. Generally, it takes a while for a child to learn how to speak. At first, a baby starts responding to words. धीरे धीरे आम तौर पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो ज़बान सीखता है. सबसे पहले वो थोड़े थोड़े अल्फाज बोलना सीखता है. It understands how different people are named. वो धीरे धीरे लोगों के नाम समझता है. How to let them know something the baby needs. और धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करता है. After a while he starts using words to express needs. धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों को लोगों के सामने पेश करता है, जैसे खाने को और पानी को मम्मा वगैरह बोलता है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. इस तरह से वो अपनी ज़रूरतों को लोगों के सामने ज़ाहिर करता है. ये उसका पहला दर्जा है. व्हेन द बेबी इज़ 1 year old, ही लर्न्स टू यूज़ वर्ड्स इन द फॉलोइंग ईयर. जैसे जैसे वो बड़ा होता है 1 साल का, वैसे वो अल्फाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. इन द फॉलोइंग ईयर ही विल लर्न हाउ टू नेम ऑब्जेक्ट्स. धीरे धीरे वो नाम भी लेना शुरू कर देता है. etc. Then, as he grows, his language understanding will continue to grow. इस तरह धीरे धीरे वो तमाम चीज़ों को समझता है और समझने की कोशिश करता है. Our fourth stage is fine motor skill development. Human motion development is connected to the growth of nerves and muscle cells. The muscles contract and relax to bring about any simple movements of life.
For this, the baby's muscles have to develop to allow proper movements. The bones need to grow stronger to support the body when holding an object or picking it up. हमारे बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, वो ग्रोथ पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे उसके मसल्स ग्रो होते हैं और वो किसी चीज़ को पकड़ने के लायक होता है, होल्ड करने के लायक होता है। इसी तरह से एक बेबी जब बड़ा होता है तो वो मूवमेंट करता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और स्ट्रांग होती है। इस तरह से जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हमें सपोर्ट करना होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद से किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकता है और किसी चीज़ को होल्ड भी कर सकता है। All simple motions need complex work in the muscles to complete even the simplest movement. फाइन मोटर स्किल वो होती है जिसके अंदर मसल्स का बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है, ताकत का बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है, उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। Our next point is gross motor skill development. There are other stages of movements in a child's growth period. These are the big movements such as standing up, learning to walk and then run. जैसे कि हमने पहले स्टेज में पढ़ा है कि फाइन मोटर स्किल के अंदर मसल्स का बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है, ऐसे ही ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। In each of these stages, the muscles need to be strong enough to provide support to the developing body. When the baby is little, its spinal cord bones and muscles are not strong enough for it to sit up. जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बैठ सके, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बैठ सके या चल सके या दौड़ सके। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके मसल्स मजबूत होते हैं, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और वो पहले रेंगने के लायक होता है, फिर बैठने के लायक होता है और फिर धीरे धीरे से खड़ा हो जाता है। However, after some time, when the development is right, the baby learns to sit up. Similarly, after some more time, when the baby feels the legs are strong. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि कुछ वक्त के बाद में बच्चा बैठने के लायक होता है, उसके बाद जैसे ही उसके पैर की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, वो खड़ा रहना शुरू कर देता है। विदाउट प्रॉपर मसल्स डेवलपमेंट, द मूवमेंट इन ईच ऑफ दिस स्टेजेस वुड नॉट बी पॉसिबल। जब तक कि मसल्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक बच्चा किसी हरकत के लायक नहीं होगा। इस तरह से हम 5 स्टेजेस देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।